करते हैं हम सब। जी थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आज खुदावंद का शुक्र करते हैं कि फिर उसने हमें एक मर्तबा मौका दिया कि हम सब इकट्ठे मिल बैठे और खुदावंद के हजूर अपने हाथों के साथ अपने दिलों को उठाएं और उसका शुक्र करें। उसकी अनगिनत नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर है, उसका शुक्रिया अदा करें, उसको मुबारक कहें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रस्तिश करें, उसकी सताइश करें, क्योंकि वो इज्जत, तमजीद, हिकमत, कुदरत और शुक्र के लायक खुदा है। वो आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता, उसके आगे से जमीन और आसमान भाग जाती है। जहां पर खुदा है वहां पर रोशनी की जरूरत नहीं, हर एक चीज उसके जलाल से मुनव्वर हो जाती है। वो जहां पर बखेरता नहीं वहां से जमा करता है। उसकी कुदरत बियॉन्ड इमेजिनेशंस, बियॉन्ड लिमिटेशंस और बियॉन्ड कंट्रोल काम करती है। वो अल्लाहों का खुदा है, वो लश्करों का खुदा है। उसके हजूर में जब हम आए हैं, हम उसका शुक्र करें, क्योंकि वो इस लायक खुदा है कि उसकी शुक्र गुजारी की जाए, उसकी इज्जत की जाए, उसकी तमजीद की जाए, उसको मुबारक कहा जाए और उसके चरणों में हम अपने सरों को रखते हैं। वो खुदा जो बर वक्त कुम्मक करता है, वो खुदा जो छोड़ता नहीं है, वो खुदा जो मोहब्बत है, वो खुदा जो प्यार करता है, वो खुदा जिसका खासा रहम करना है। है बाप, इस वक्त जब हम तेरे हजूर में हाजिर हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं इन जिंदगी की चलती हुई सांसों की डोर के लिए जो तेरी तरफ से है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद और तेरी ताज़ीम। है बाप, जब हम जितनी देर यहाँ पर बैठते हैं, तेरा तख्त हमारे दरमियान में लगा रहे, तेरी शोलाजन तलवार हमारे घरों के ऊपर आकर ठहर जाए। पाकरू की जुम्बिश, पाकरू का मसा और पाकरू की कुदरत में होकर आज हम बातचीत करें। ये बात हमारी और ये कलाम हमारी बढ़ोतरी के लिए हो, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम खुदावन के कलाम में से जो हिस्सा देखेंगे, पौलुस रसूल का इब्रानियों के नाम खत, उसका 9 बाब और उसकी पहली 5 आयत। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 9 बाब और उसकी पहली 5 आयत। कोई भी निकाले, मेहरबानी से इसको पढ़ दीजिए। चैप्टर है जी। लिहत ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਵੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੰਬੂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਲਾ ਤੰਬੂ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਦਾਨ, ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਚੜਾਵੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੇਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਨੀਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ। ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੱਜਾ, ਹਰੂਨ ਦਾ ਪੁੰਗਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਟਾ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਨੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂਬੀ ਸਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਰੋਤਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰੋਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
یہ پرانے عہد نامے میں جو ہیکل کا نمونہ تھا کہ ایک پاک مقام تھا، پاک مقام اور پاک ترین مقام کے درمیان میں ایک پردہ ہوتا تھا، اور پاک ترین مقام جو تھا اس میں سونے کا عود سوز، چاروں طرف سونے سے منڈا ہوا عہد کا صندوق تھا۔ عہد کا صندوق من سے بھرا ہوا سونے کا مرتبان اور پھلا پھولا ہارون کا عصا اور عہد کی تختیاں تھیں۔ اس کے اوپر جلال کے کروبی تھے جو کفارہ گاہ پر سایہ کرتے تھے۔ ہولی آف ہولی یا پاک ترین مقام وہ جگہ تھی جہاں پر سردار کاہن سال میں ایک دفعہ قوم کی بھول چوک کے لیے اس کا کفارہ دینے کے لیے جاتا تھا، اور اس سے پہلے جو پاک مقام تھا وہاں پر وہ آ جا سکتا تھا۔ اور جب وہ گناہوں کا کفارہ لے کے جاتا تھا تو وہ جگہ جو تھی وہاں پر ہر وقت خدا کی حضوری ہوتی تھی۔ اس کو پاک ترین مقام کہتے تھے کہ وہاں پر سردار کاہن جو ہے وہ جب بھی جاتا اس کے اوپر گھنٹیاں باندھتے، اس کے ساتھ جو ہے ایک خاص لباس پہنتا، اور پہلے اپنے گناہوں کی قربانی کے لیے ایک جانور ذبح کرتا، پھر جب اندر جاتا تو خون لے کے جاتا۔ یعنی اگر اس نے بھول چوک کی ہوتی، کوئی گناہ ہوتا اس کی زندگی میں، تو وہ مر جاتا تھا، اور اس کے جسم کے ساتھ گھنٹیاں ہوتی تھیں اور رسی باندھی ہوتی تھی۔ جب گھنٹیاں آنی بند ہو جاتی تھیں اور وہ رسی سے اس کو سردار کاہن کو باہر کھینچ لیتے تھے، کیونکہ سردار کاہن کے بغیر اس میں کوئی جگہ کوئی اور شخص جا نہیں سکتا تھا۔ اور ہولی آف ہولیز جیسے میں نے کہا کہ اس کو ایک ویل یا پردے کے تھرو الگ کیا گیا تھا، اور اس پردے کے دوسری طرف پاک ترین مقام تھا۔ بہت سے خادم بات کرتے ہیں کہ ہولی آف ہولیز میں جانا، بہت سے گیت بھی ہیں کہ ہاؤ کین وی گو ٹو ہولی آف ہولیز۔ ہولی آف ہولیز وہ جگہ ہے جو پاک ترین مقام ہے، جہاں پر جانا خوف آپ کو دلا دیتا ہے، کیونکہ خدا کی حضوری وہاں پر ہم گھبرا جاتے ہیں۔ کیونکہ موسیٰ کو خدا نے کہا کہ تو مجھے دیکھ کے زندہ نہیں رہ سکتا، وہاں پر اتنی ہیوی پریزنس ہوتی ہے کہ خدا کی کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ہولی آف ہولی وہ جگہ ہے جہاں پر ہم چپ کر جاتے ہیں اور خدا بولتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لیویٹیکس یا احبار 16 باب کی 2 آیت دیکھیں، اس کو نکالتے ہیں ہم۔ اس میں کیا کہتا ہے خدا؟ 16 باب کی 2 آیت: خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا اپنے بھائی ہارون سے کہہ کہ وہ ہر وقت پردہ کے اندر کے پاک ترین مقام میں سرپوش کے پاس جو صندوق کے اوپر ہے نہ آیا کرے، تاکہ وہ مر نہ جائے، کیونکہ میں سرپوش پر ابر میں دکھائی دوں گا۔ یعنی یہ وہ جگہ تھی جہاں پر خدا کی پریزنس ہوتی تھی، اور خدا نے موسیٰ کو منع کیا کہ اپنے بھائی کو کہے کہ ہر وقت وہاں پر نہ آیا کرے کہ وہ مر نہ جائے۔ اتنی ہیوی پریزنس ہوتی تھی۔ آج جب ہم ہولی آف ہولیز کی بات کرتے ہیں، ہولی آف ہولیز وہ جگہ ہے جہاں پر خدا کی پریزنس، اس کا جلال، اس کی قدرت ہوتی ہے، اور وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور اس میں جانے کے لیے گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ یعنی ہیوی پریزنس آف گاڈ۔ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ اب ہولی آف ہولیز کہاں پر ہے۔ یہ جو ہولینس آف گاڈ کی ہم بات کر رہے ہیں پچھلی 2-3 دفعہ سے، وہ جو ہے اس کی پاکیزگی سردار کاہن کے علاوہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے خدا نے کہا کہ سال میں ایک مرتبہ آؤ، اور وہ بھی جو ہے قربانی دے کے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، پھر اس کے بعد آؤ۔ اور یہ جو پردہ تھا، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس پردے کے پار ہم نے
نہیں جانا، اس پردے سے کو کراس نہیں کرنا. اس پردے کو جب کراس کرتا ہے انسان تو وہ مر جاتا ہے. نہیں توڑتا، وہ اپنی حدیں توڑ کر آگے نہیں آتا، لیکن انسان ہر حدوں کو توڑ دیتا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ خدا سے پیار نہیں کرتا، اس لیے کہ خدا کے حکم کو وہ امپورٹنس نہیں دیتا، اپنے ایجنڈا کو سامنے رکھ کر جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. اب یہ جو ہولی آف ہولیز ہیں، پاک ترین مقام، اس پاک ترین مقام میں سردار کاہن ایک ہی دفعہ جاتا ہے اور بغیر گناہوں کی معافی کے نہیں جاتا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے آنے سے کیا ہوا. آپ میرے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھیوں 6 باب کی 3 آیت، 6 باب کی پہلا کرنتھیوں 3 باب کی 16 آیت. پہلا کرنتھیوں 3 باب کی 16 آیت. ریڈ کرتے جی. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ. آمین. ਆਮੀਨ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے. وہ اس دنیا میں کیوں آئے، اس کے بارے میں کلام کیا کہتا ہے؟ ازل سے، یعنی کہ بگننگ سے ذبح کیا ہوا برا، وہ برا جو جہان کے گناہ اٹھا لے جانے کے لیے آیا، جس کا نام یسوع مسیح ہے. وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے، جس نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا اور ہر ایک زبان اس کا اقرار کرتی ہے، خواہ آسمانیوں کی، خواہ زمینیوں کی، خواہ ان کی جو زمین کے نیچے ہیں. اس لیے کہ اس نے قربانی دی، اس نے اپنا خون بہایا. جب جانوروں کا خون خدا کے حضور سردار کاہن بہا کر اس کے حضور جاتا تھا تو وہ بچ جاتا تھا. ہم 9 باب کی 11 آیت کو پڑھیں گے. لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن بن کر آیا، اب یسوع مسیح سردار کاہن بن کر آیا کس کا؟ ہمارا. کیوں؟ کہ تاکہ وہ کامل تر خیمہ کی رات سے جو ہاتھوں کا بنا، یعنی اس دنیا کا نہیں، بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ہماری ابدی خلاصی کرا دی. ہاں، یعنی اب ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا چیز کو پر غور کرتے ہیں کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور یسوع مسیح نے ایک کفارہ دینا. جس طریقے سے سردار کاہن بکروں کا، جانوروں کا خون لے کے خدا کے حضور جاتا اور ان سے ان کی ظاہری پاکیزگی ہوتی 1 سال کے لیے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون دیا اور صلیب پر بے عیب قربان کر دیا. کیونکہ دیکھیں یسوع کو قربانی دینا تھی، اور قربانی جو ہے وہ خدا کے حکم کے مطابق بے عیب برے کی ہوتی ہے. بے عیب برا جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. داؤد جو خدا کا دل پسند شخص تھا، زبور 51 کی 5 آیت میں کہتا ہے میں ماں کے پیٹ ہی سے گناہ گار ہوں. یعنی انسان کی رغبت، اس کی جو سرشت میں گناہ ہے، کیونکہ وہ گناہ اس کے باپ دادا سے، اس کی بلڈ لائن میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. یسوع مسیح جیسے یوحنا 8 باب کہتا ہے کہ وہ خدا سے نکلا اور آیا، خدا سے نکلا اور آیا، اس لیے وہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے. اس کے اندر انسان کا تخم نہیں تھا، اس لیے وہ گناہ سے پاک تھا.
इब्रानियों 5 बाब कहते हैं उसने अपनी बशरियत के दिनों में रो रो के खुदा से दरख्वास्त करता रहा कि मुझे मौत से बचा। यानी खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया में आए इंसान थे, कमजोर थे, इसीलिए तमाम बच्चों को मारा गया था कि यीशु मसीह इंसान थे और वो मारे जा सकते थे, तमाम बच्चों को मार दिया गया था। लेकिन उन्होंने अपनी इस दुनिया में इंसानी जिंदगी में क्या किया? 5 बाब, इब्रानियों 5 बाब की 7 आयत, उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमानबरदारी सीखी। यानी खुदावंद यीशु मसीह रोते थे, चिल्लाते थे, ऐ बाप मुझको मौत से बचा ले, मुझे गुनाह से बचा, क्योंकि गुनाह का डंक मौत है, जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। वो रोते थे, चिल्लाते थे कि मुझे गुनाह से बचा। ये वो बरा बना, यानी बेऐब बरा, जो मेरे आपके गुनाहों को लेके सलीब पर चढ़ गया, और कलाम कहता है कि उसकी कोई शक्ल नहीं थी, उसके जिस्म पर रेगारियां थी, हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि उसको हमारी खताओं की सबब से घायल किया गया। और खुदा यीशु मसीह हमारे गुनाहों को, पापों को लेके सलीब पर चढ़ गए। और जब उन्होंने कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया, कलाम कहता है कि वो पर्दा जो पाक और पाक तरीन मकाम में था, वो पर्दा फट गया। किसी ने उसको कैंची से नहीं काटा, खुदा की कुदरत ने उस 9 सेंटीमीटर, कुछ कहते हैं 15 to 20 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई थी, वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यानी जो खुदा और इंसान के दरमियान में जुदाई थी, उस पर्दे के फटने से अब हम पाक तरीन मकाम में जब दिल करे जा सकते हैं। अब खुदा हमसे दूर नहीं। और उसने कहा कि उसका नाम क्या रखना? कहा कि उसका नाम इमानुएल रखो, यानी खुदा हमारे साथ। वो उसके आने का मकसद, उसका नाम का मकसद पूरा हुआ, यानी खुदा हमारे साथ है। यानी खुदा की और इंसान की जुदाई खत्म हो गई। अब इंसान को जरूरत नहीं कि जानवरों का खून लेकर खुदा के हजूर में जाए। अब वो जब चाहे उसके हजूर दलेरी के साथ जा सकता है, क्योंकि वो जानवरों का खून लेकर नहीं, अपना खून लेकर एक ही बार कामिल और तरखैमा की रात से जो हाथों का बना है, यानी इस दुनिया का नहीं, बकरों बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। आज हैकल, पाक मकाम और पाक तरीन मकाम जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह ने उसके पर्दे को खत्म कर दिया, क्योंकि अब यीशु मसीह ने एक ही बार हमारी कुर्बानी दे दी और हमको खरीद लिया। हम कहते हैं, आई एम बॉट प्रॉपर्टी ऑफ ऑलमाइटी गॉड, आई हैव बीन बॉट विद द प्राइस एंड द प्राइस इज ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के खून से खरीदा गया हूं, और ये कोई कीमत आसान कीमत नहीं है, ये बहुत बड़ी कीमत है जो खुदा ने हमारी खातिर चुकाई। यानी हम गुनाहगार लोगों को, हम पैदा भी नहीं हुए थे, उसने अपने बेटे के खून से खरीदा है। हम दोबारा करंथियों की तरफ आए। पहला करंथियों 3 बाब की जो आयत अभी हमने पढ़ी थी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो? देखें उस कुर्बानी की कितनी खूबसूरत बात है। अब खुदा उस हैकल को नहीं देख रहा, आज वो आपको, मुझको, हम सब लोगों को देख रहा है कि मेरी हैकल, मेरा टेंपल ये लोग।
क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? यानी देखिए, मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि वहां पर मक़दस में क्या होता था कि हैवी प्रेजेंस होती थी, और खुदा ने मूसा को कहा कि हारून को मना कर के जब दिल करे आना जाया करे, ऐसा ना हो कि मर जाए। आज अगर हम खुदा का मक़दस हैं, क्या वो प्रेजेंस यहाँ पर है जो खुदा पाक मकाम या पाक तरीन मकाम में देखता था? एक सवाल है मेरा हम सब से, मेरा अपने आप से सवाल है, मेरे बच्चों से सवाल है, मेरी वाइफ से सवाल है, सब लोगों से। क्या आज खुदा की हजूरी अपनी हैकल में वैसी है जैसी पाक मकाम और पाक तरीन मकाम में होती थी, कि लोग वहां पर नहीं जाते थे? उस पर्दे के पार खुदा ने कहा इसको क्रॉस नहीं करो, जो ये बाउंड्री क्रॉस करेगा वो मर जाएगा। आज मैं और आप वो मक़दस है खुदा की, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद वो हैकल या वो पाक तरीन मकाम खुदा ने तब्दील कर दिया। खुदा ने इंसान को अपनी हैकल बना दिया। इसमें देखें आगे क्या कहता है, अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। आज मैं और आप अपने आप को किस जगह पर देख रहे हैं? क्या हम खुदा का टेंपल हैं? देखिए, मैं बहुत ज्यादा इजीली कह सकता हूं कि आई एम टेंपल ऑफ होली स्पिरिट, मैं पाक रूह का मक़दस हूं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि पाक रूह मुझ में बसा हुआ है और उसकी हैवी अनॉइंटिंग मेरी जिंदगी पे है? कहना बहुत इजी है कि मैं खुदा का टेंपल हूं, लेकिन इसको प्रूव करना कि मैं खुदा का टेंपल हूं बहुत मुश्किल है। बहुत कीमत चुकानी पड़ती है इसकी, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है, वो डिफाइल नहीं है, उसमें कोई गुनाह नहीं है, उसके अंदर कोई छुरी नहीं है, उस कलीसिया के अंदर जो खुदा हम में देखना चाहता। हमारी बॉडीज जो हैं, हमारे बदन जो हैं, वो पाक रूह के पाक मस्क वो इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए कि जिनको पाक रूह इस्तेमाल कर सके। क्या हम इज्जत के बर्तन हैं? अगर इज्जत के बर्तन हैं तो हम जो हैं पाक रूह की मामूरी से मामूर हैं, खुदा का मक़दस हैं, खुदा का रूह हम में बसा है। जहां हम जाते हैं, जैसी अनॉइंटिंग होली ऑफ होलीज में थी ऐसी हमारे साथ होती है, क्योंकि खुदा का मक़दस हम है और खुदा का रूह हम में बसा है और खुदा की कुदरत हम में काम करती है। बहुत सी जगहों पर जब पादरी या खुदा के खादिम पोजेशन के केस में जा रहे होते हैं, बहुत सी चीजें भाग जाती हैं उनके आने से पहले, क्योंकि वो उस शख्स को नहीं बल्कि उस अनॉइंटिंग को देख रही होती हैं जो उसके साथ चल रही होती है, वो कुदरत जो उसके साथ चल रही होती है, उसको देख के भाग जाती हैं। एक आयत हम और देखेंगे, पहला करंथियों 6 बाब की 19वीं आयत और 20वीं आयत। कोई भी पढ़ दे मेहरबानी से। ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। आमीन। ये हमारा मकसद है, क्योंकि हम अपने नहीं हैं। आज मैं आपको बता दूं कि आप अपने बीवी जो है अपनी मियाँ की नहीं, मियाँ जो है अपनी बीवी का नहीं, हम कीमत से खरीदे गए हैं। किसकी कीमत से खरीदे गए हैं? खुदावंद यीशु मसीह के खून की कीमत से इसलिए खरीदे गए हैं कि इन बदनों से खुदा का जलाल जाहिर हो, यानी खुदा की कुदरत जाहिर हो। जहां पर हम जाएं खुदा की कुदरत हमारा हरावल और चंडावल हो।
ہم اپنے نہیں ہیں. خدا کا کلام صاف صاف کہہ رہا ہے کہ عامر، ارم، ابر یا عزا یا ایمن کا نہیں بلکہ خدا کا ہے. اور یسوع نے کہا جو اپنے بیوی بچوں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں. ہمارا بدن روح القدس کا مقدس ہے. پاک روح ہمیں معاف کر کہ ہم اس بدن کو بہت خراب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بری جگہوں پر دیکھتے ہیں، مکر کی باتیں کرتے ہیں، ہر ایک بات جو ہمارے من پسند ہے وہ کرتے ہیں اور تجھے بارہا رنجیدہ اور افسردہ کرتے ہیں. ہمیں معاف کر اے باپ، معاف کر اے باپ. جو قیمت تو نے ہمارے گناہوں کی خاطر دی وہ بہت بڑی قیمت. کون اپنے بچے کو کسی کے گناہوں کی خاطر معاف قربان کرتا ہے؟ دنیا کے دیوتا تو خون مانگتے ہیں، اور لیکن تو نے ہماری خاطر اپنے پوتر بیٹے ہمارے منجی پربھو یسوع کا خون دیا. تیرا شکر ہو. اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کر. اے باپ، ہم یہ کام کرنے میں اب تک پیچھے ہیں. ہمارے بدنوں سے تیرا جلال ظاہر نہیں ہو رہا کیونکہ ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. ہمارے دل جو ہیں برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن زبانیں ہماری بہت اچھی ہیں. اے باپ، ہم دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ ہوتا ہے. ہمارے ہر جگہ پر ایک ہم نیا ماسک لگا لیتے ہیں. چرچ گئے تو ہم ایک نیا ماسک لگا لیتے ہیں، گھر آئے تو ہمارا ایک نیا ماسک ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں تو ادھر ایک نیا ماسک ہے، روحانی لوگوں میں جائیں وہاں پر ایک نیا ماسک لگا لیتے ہیں. ہم اپنے ماسک کو بدلتے رہتے ہیں، اپنے چہرے کی اپیئرنس کو چینج کرتے رہتے ہیں. ہم صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا گناہ کریں تو ہم جو ہے وہ اس بدن کو مطلب بدن سے خدا کا جلال ظاہر نہ ہو. مطلب کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی زنا کریں، چوری کریں، جھوٹ بولیں تو ہم گناہ کرتے ہیں. بہت سے ایسے گناہ ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا. متی 15 باب کی 18 آیت ذرا پلیز نکالیں اور اس کو پڑھ دیجئے. میتھیو 15 اور اس کا 18، 19 اور 20. Matthew 16. متی 5 باب دی 18، 19 تے 20 آئے پلیز. 5 باب تھی جی. اوکے. 5 باب تھی 18. یاد رکھو، جد تک ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹਨ, ਨੇਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ. سوری سسٹر جی، سوری. 15 باب سوری. 15. ہاں جی، سوری جی. نو پرابلم. 15 بھی 18 19 20. کون سی؟ میتھیو 15 کی 18 سے 20 جی، 18 سے 20 تک. اوکے. ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਹੱਤਿਆ, ਵਿਚਾਰ, ਕਚਰਹੀਤਾ, ਚੋਰੀ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਿਆ ਆਦਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ کہ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਧੋਏ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ. آمین. مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. خدا کا کلام کی کہہ رہا ہے؟ 3 باب دی، پہلا کرنتھیوں 3 باب دی 17 آیت چ لکھا ہے، اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو. اگر یہ مقدس پاک نہیں ہے، پاک کا الٹ کیا ہے؟ ناپاک. یہ ناپاکی کی چیزیں دیکھیں کیا ہیں؟ برے خیال. ہم نے کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، چوری نہیں کی، برے خیال آ رہے ہیں، یہ ناپاک کر رہے ہیں. خون ریزیاں، زنا کاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گوائیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں. یہی ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں.
यही नहीं है कि जी हमने झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, हमने शराब नहीं पी, हमने शराब पी के किसी की मां बहन को नहीं छेड़ा, हम तो असी ते शराब पी के जी प्रभु दियां गल्लां करने आ। ये नहीं चलेगा। जो चीजें इंसान के दिल से निकलती हैं, यानी खून रेजियां, बुरे ख्याल, ज़नाकारी, ये चीजें आदमी को नापाक कर रही हैं। अगर ये चीजें हमारे दिल में से कीप ऑन कमिंग, निकलती जा रही हैं, तो हम नापाक हैं। हमें इन चीजों का ख्याल भी नहीं होता कि हम इस वक्त गुनाह में हैं। हमसे ज्यादा बड़ा इस वक्त कोई ईमानदार नहीं होता, हमसे बड़ा कोई इस वक्त जो है प्रभु का सेवककार नहीं होता, लेकिन हमारे दिल से बुराइयां निकल रही हैं। और खुदा का कलाम सख्ती से कह रहा है, खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। जब तक तुम पाक हो, खुदा का मकदस हो। खुदा गंदी जगह पर नहीं ठहरता, पाखरू गंदी जगह पर नहीं ठहरता। जब हमारे दिल, हमारे होंठ, हमारी आंखें, हमारे कान बुराइयों से भरे होंगे, बुरी चीजें हम सुनेंगे, बुरी चीजें हम देखेंगे, लेकिन फिजिकली कोई गुनाह नहीं कर रहे कि जी हम किसी को छेड़ नहीं रहे, अपने आप को तसल्ली ना दे। अपने आप को हम अगर देखना चाहें, इस खुदा के कलाम के मुताबिक देखें खुदा यीशु मसीह ने कितना बड़ा काम किया। देखें, अगर हम देखें, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदा की मोहब्बत थी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और खुदावंद यीशु मसीह जान देने तक वफादार रहा और उसको जिंदगी का ताज दिया गया। बाप ने अपना काम कर दिया, यीशु ने अपना काम कर दिया। यीशु ने वादा किया, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा बल्कि एक मददगार भेजूंगा जो तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। मसीह ने ये वादा भी पूरा कर दिया। अब खुदा अपने तख्त पर है, यीशु मसीह उसके दाहिने हाथ पर है, दोनों बैठे हुए हैं। बैठने का मतलब फिनिश्ड वर्क, खत्म है काम, यीशु का भी और बाप का भी। और दाहिना हाथ माइट को या कुवत को जाहिर करता है। खुदावंद यीशु मसीह बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं। वो आसमान पर है, जमीन पर कौन है? उनके वादे के मुताबिक भेजा गया पाखरू। पाखरू जो है उसके नाम से जाहिर है कि वो पाक है। वो किन जगहों पर ठहरता है? पाक जगहों पर ठहरता है। रोमियो 8 बाब की तो 8 आयत बहुत साफ कहती है, क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। फिर आगे जाके कहता है 9वीं आयत में, क्योंकि तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हो, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। इस घर को खरीदने का एक मकसद था और वो मकसद था कि पाखरू आके बसे, और कोई मकसद नहीं था। और पाखरू अगर हमारी जिंदगियों में बसा हुआ है तो खुदा का मकसद आज मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। अगर पाखरू नहीं बसा हुआ तो खुदा का मकसद मेरी जिंदगी में पूरा नहीं हो रहा। अगर मुझ में पाखरू नहीं तो मैं उसका नहीं। बथेरे कहेंगे खुदावंद हमने ये किया, हमने तो तेरे नाम से मुर्दे जिंदा किए। मुर्दे जिंदा तुमने नहीं किए, मुर्दा तो खुदा ने जिंदा किया। मेरी क्या मजाल कि मैं अपना एक सफेद बाल काला कर सकूं। यीशु नाम में मौत से होते हैं, क्योंकि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती। आज इस कलाम को अपनी जिंदगियों में देखें। मैं कौन हूं? सोचें आज अपनी जिंदगी में, मैं कौन हूं कि मसीह मेरी खातिर मरा? मैं कौन हूं जिसकी खातिर वो खुदावंद, जिसकी आंखें आग के शोले, जिसका चेहरा ऐसे चमकता है जैसे तेजी के वक्त आफताब, वो खुदावंद प्रभु यीशु जब पैदा हुआ तो एक नया कायनात में सितारा आ गया। वो मेरी खातिर अजियतनाक मौत मरा।
जो गुनाह से वाकिफ ना था, सारे गुनाह अपने ऊपर लेके मर गया और मेरी अब्दी खलासी कराई। मैं अब कहां पर हूं? बाप ने अपना काम किया, बेटे ने अपना काम किया, यानी बाप ने मोहब्बत की और अपना बेटा भेजा, बेटे ने हमसे मोहब्बत की और अपनी जान सलीब पर बेऐब कुर्बान कर दी। अब मेरा क्या काम है? इस बदन को पाक रूह के लिए साफ कर दूं। पाक रूह आके बसे इसमें, ये मकसद है नए अहदनामे का मकसद, कि खुदा का रूह, जैसे कि सिस्टर एलिस कोयटा में बहुत देर पहले आई थी, उन्होंने एक बात का जिक्र किया था, कहती हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट। इन ओल्ड टेस्टामेंट होली स्पिरिट वाज विद देम, इन न्यू टेस्टामेंट होली स्पिरिट इज इन देम। क्या हम अब तक ओल्ड टेस्टामेंट वाली जिंदगी गुजार रहे हैं कि समसून की तरह, सैमसन की तरह कभी पाक रूह आया, आके एक हमने हड्डी उठाई, 2000 आदमी मार दिए, अगले लम्हे फिर हम दलाला के पास हैं? या नए अहदनामे की जिंदगी के गुनाह को देख ही नहीं सकते? मैं अब जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, यानी गुनाह नहीं जिंदा, अब गुनाहों को खत्म करने वाला, सलीब पर अपने आप को बेऐब कुर्बान करने वाला प्रभु यीशु नासरी मेरी जिंदगी में जिंदा है। अगर खुदावन मेरे साथ है तो फिर कौन मेरा मुखालिफ हो सकता है? जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ का मतलब सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन यीशु ने कहा जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहो, और वो कुव्वत का लिबास पाक रूह है। हम एक दुआ करेंगे। खुदा उन कादिर मुतलिक रहीम मेहरबान आसमानी बाप, हम इंसान हैं, कमजोर हैं, बदी को पानी की तरह पीते हैं, जाने अनजाने में ख्यालन कौलन फेलन पोशीदगी और बेबाकी में गुनाह करते हैं। और तेरा कलाम कहता है साड़ी बदकारी रखी है सारी अपने तू अगे खुदा। तेरा कलाम कहता है तू हमारी ख्वाबगाह की छानबीन करता है। वी आर नॉट हिडन फ्रॉम यू। ज़बूर नवीस कहता है खुदाया तेरी रूह तो भला मैं नस के किधर जाऊं। दुनिया में कोई जगह नहीं जहां पर हम खुदा से भाग सकें, खुदा के रूह से भाग सकें। जब हम उससे भाग नहीं सकते तो आए आज हम अपने आप को कमाल फरोतनी से खुदा के सामने अपने होंठों को खोलकर इस बात का इकरार करें कि आए बाप, मैं अपने जोर से तेरे पाक रूह के साथ नहीं चल पा रहा, मुझे तेरे फजल यानी अनमेरिटेड फेवर की जरूरत है और पाक रूह की कुदरत की, क्योंकि उसकी कुव्वत के बगैर मैं उसके साथ नहीं चल सकता। क्योंकि ये मैं नहीं, खुदा का कलाम कहता है ये ना जोर से और ना कुव्वत से, मेरे रूह से होगा, खुदा फरमाता है। आज हम अपने आप को सरेंडर करें। पाकरू तुझे रंजीदा करते हैं, अफसुर्दा करते हैं। आए पाकरू हम लोगों से छुपते हैं, बंद कमरों में जाके गुनाह करते हैं, इस बात को भी भूल जाते हैं कि तू वहां पर भी है। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलबा मुझी पे तू दिलाता जा, साथ ईमान भी खाता जा, हाथ अपने उठाए आते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है, खाली कासे हैं। पाक रूह हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। आज बड़ी कुव्वत और कुदरत से आ पाक रूह, ये तेरे हैकल हैं, ये तेरे बदन हैं, तेरे लिए खरीदे गए हैं। आज अगर हम अपनी हट धर्मी की वजह से
तुझे नहीं आने दे रहे। ऐ बाप उस हर धर्मी को खत्म कर दे, उस गुनाह की लज्जत को निकाल दे हमारी जिंदगियों से, जो हमें पाक पवित्र आत्मा को हमारे शरीरों में आने से रोक रही है आज तक। उस गुनाह को निकाल दे। मैं यीशु की भेड़ हूं, सब कहें मैं कीमत से खरीदी गई हूं। मैं यीशु के पीछे चलना चाहती हूँ। पाकरू मेरी मदद करके मैं अपने चरवाहे के पीछे चल सकूं। यीशु ने कहा अच्छी भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज सुनकर उसके पीछे आती। ऐ बाप हमें अच्छी भेड़ें बना, हम अपने चरवाहे के पीछे चल सकें। हर एक वो चीज जो हमें आसानी से उलझा लेती है, बाप उसके जोर को हमारी जिंदगियों से काट डाल आज यीशु के नाम में। Holy Spirit, take control over our spirit, soul and body. पाकरू अपने आज इस मकदस को साफ कर, अपने इन मकदसों को जो जो तेरे हजूर में है, आए बाप इन मकदसों को साफ कर। आज हम कोड़ा उठाएं और उन तमाम गुनाहों को निकाल दें, जैसे यीशु ने अपने बाप के घर को साफ किया। आज अपने घरों को साफ करें पाकरू के जोर से, पाकरू की कुदरत से, पाकरू के मसा से, और अपने आप को खुदा के हजूर रख दें, क्योंकि खुदा अपने रूह को पहचानता है। आज वो आमिर को, इरम को पहचाने ना पहचाने, लेकिन अपने रूह को पहचानता है कि वो किस में है। ऐ बाप हमें इज्जत के बर्तन बना सबको, हम में से कोई जिल्लत का बर्तन ना बने। अपना ताजा मसा दे बाप, जैसे हम आए आज वैसे ना जाएं। अपनी कुव्वत, कुदरत और मसा से भर, हम सबको मसा कर। आए बाप आसमानी जैसे आज ब्लेसिंग रिलीज की तेरी खादमा आए बाप पास्टर मोनिका ने, आज आए बाप तू अपना हाथ रख, अपना हाथ रखते आए बाप, हमें मसा कर कि तेरी हजूर आए बाप फरमाबरदारी से चल सके। गुनाह का जोर हमारी जिंदगियों से तोड़ डाल। आज हम सब अपनी फिक्रें और परेशानियां खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तुझको दे देते हैं, क्योंकि तूने कहा अपनी फिक्रें मुझको दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। फिक्र करने वाले बाप हमारी फिक्रें ले, हमें बरकत दे आए बाप, आज बरकत दे, हमारी रोटी पानी तेल पे बरकत दे, हमारे बच्चों की इज्जत आबरू को अपने पनाह में रख, कोई उनकी जवानी की हकारत ना करे आए बाप आसमानी। है बाप आज अपने पाखरू से हमें मसा कर, और हमें आने वाले दिनों में पाखरू की कुदरत में आगे लेकर चल। सारा जलाल है बाप हम तुझे दें, सारा जलाल यीशु के नाम में तुझे मिले। हम घटते चले जाएं, हम घटते चले जाएं, हम नीचे हों और तू ऊपर हो हमारी जिंदगी में। तू हमें उठा खड़ा कर, तू हमें वहां लेकर चल जो तेरा प्लान हमारे बारे में है, उस प्लान तक लेके चल। तेरे बेटे अपने मनजी खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में इस दुआ को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। खुदा आप सबको बहुत बरकत